کیا کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ سکون سے بیٹھی ہیں اور اچانک دل کی دھڑکن کسی ریس کے گھوڑے کی طرح بھاگنے لگتی ہے؟ یا ذہن میں ایک ہی منفی خیال، ایک ہی ڈر بار بار گھومتا رہتا ہے اور آپ اسے روک نہیں پاتے؟ بالکل۔ آج ہم دماغ کے اندر ایک جاسوسی مشن پر جا رہے ہیں۔ ہمارا مشن ایک ایسے الارم سسٹم کو سمجھنا ہے جو بے وقت بجتا رہتا ہے، جسے ہم بے چینی یا اینزائٹی کہتے ہیں۔ اچھا۔ ہم یہ کھوج لگائیں گے کہ اس الارم کے بٹن کہاں ہیں، اور ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل میں ایک نہیں بلکہ 2 الگ الگ بٹن ہیں، اور ہر ایک کو خاموش کرنے کا طریقہ بالکل مختلف ہے۔ اس مشن کے لیے ہماری گائیڈ بک ہے ریوائر یور اینکشس برین، جس کا خلاصہ یوٹیوب چینل کتاب کاروا پر موجود ہے۔ اور اس جاسوسی مشن کو شروع کرنے سے پہلے سب سے ضروری بات یہ سمجھنا ہے کہ بے چینی آپ کی دشمن نہیں ہے۔ اچھا، یہ کوئی کمزوری یا کردار کی خامی بالکل نہیں ہے۔ یہ تو دماغ کا ایک بہت پرانا اور کارآمد حفاظتی نظام ہے۔ جب ہم اسے اس نظر سے دیکھتے ہیں تو خود کو الزام دینے کی جگہ تجسس لے لیتا ہے، اور یقین کریں تبدیلی کا سارا سفر اسی تجسس سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ اکثر ہم خود کو ہی کوسنے لگتے ہیں کہ میں ایسی کیوں ہوں۔ جی، تو چلیں اسی تجسس کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اگر یہ ایک حفاظتی نظام ہے تو یہ ہمیں بچانے کے بجائے اتنا دکھی کیوں کرتا ہے؟ ایسا کیوں لگتا ہے کہ میرا اپنا دماغ میرے خلاف کام کر رہا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ کتاب کے مطابق یہ ایک قدیم بقا کا نظام ہے۔ بقا کا نظام؟ جی، ہمیں خطرے سے بچانے کے لیے بنا تھا۔ سوچیں، ہزاروں سال پہلے جب ہمارے آباء و اجداد جنگلوں میں رہتے تھے تو اچانک کسی شیر کا سامنے آ جانا ایک حقیقی خطرہ تھا۔ بالکل، ایک حقیقی خطرہ تھا۔ اس وقت دل کا تیز دھڑکنا، سانس کا پھولنا اور جسم کا بھاگنے یا لڑنے کے لیے تیار ہو جانا زندگی اور موت کا سوال تھا۔ اس نظام کا مقصد ہی یہی تھا، خطرے کو بھانپو اور فوراً رد عمل دو۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آتا ہے۔ سڑک پار کرتے ہوئے اچانک گاڑی سامنے آ جائے تو یہی نظام ہمیں بچاتا ہے۔ جی ہاں۔ لیکن آج کل تو ہمارے پیچھے شیر نہیں بھاگ رہے ہیں نا؟ پھر یہ نظام اتنا زیادہ کیوں چل رہا ہے؟ گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے کون سا خطرہ ہے؟ اور یہی اس مسئلے کی جڑ ہے۔ ہمارا دماغ تو وہی پرانا ہے، لیکن ہماری دنیا بدل گئی ہے۔ آج کے خطرات جسمانی نہیں، ذہنی ہیں۔ کام کا دباؤ، مستقبل کی فکر، لوگوں کی رائے کا خوف۔ ہمارا دماغ ان چیزوں کو بھی ویسے ہی خطرہ سمجھتا ہے جیسے وہ شیر کو سمجھتا تھا۔ کتاب میں اس کے لیے ایک بہترین تشبیہ استعمال کی گئی ہے، فائر الارم کی۔ فائر الارم؟ جی، اگر گھر میں آگ لگے تو الارم کا بجنا زندگی بچاتا ہے، لیکن اگر وہی الارم صرف ڈوز چلنے پر یا کبھی کبھی بغیر کسی وجہ کے آدھی رات کو بجنے لگے تو وہ مددگار نہیں رہتا، ایک مستقل عذاب بن جاتا ہے۔ بالکل، جدید دور کی بے چینی بالکل یہی ہے، ایک حد سے زیادہ حساس فائر الارم جو ہر چھوٹی بات پر بج اٹھتا ہے۔ واہ، یہ فائر الارم والی مثال تو بالکل صاف تصویر دکھا رہی ہے۔ جی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مقصد الارم کو توڑنا نہیں بلکہ اسے دوبارہ سے ٹھیک کرنا ہے تاکہ وہ صرف اصلی آگ لگنے پر ہی بجے۔ بالکل، اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ الارم بج کہاں سے رہا ہے۔ کتاب کا سب سے انقلابی نقطہ یہی ہے کہ بے چینی دماغ میں 2 مختلف راستوں سے پیدا ہوتی ہے۔ 2 راستوں سے؟ جی، ایک راستہ ہے امیگڈیلا کا اور دوسرا ہے کارٹیکس کا۔ 1 منٹ، 2 راستے؟ یہ بات تو بہت دلچسپ ہے۔ میں نے ہمیشہ سوچا کہ بے چینی تو بس بے چینی ہوتی ہے، یہ ایک ہی چیز ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ بے بس محسوس کرتے ہیں۔ امیگڈالا سے آنے والی بے چینی ایک جسمانی طوفان کی طرح ہے۔ دل کا دھڑکنا، ہاتھ کانپنا، سانس اکھڑنا، یہ فوری اور شدید ہوتی ہے۔ جبکہ کارٹیکس سے آنے والی بے چینی ذہن میں چلنے والی ایک مسلسل فلم کی طرح ہے۔ کیا ہوگا اگر، لوگ کیا سوچیں گے، مجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا۔ یہ تو بہت جانی پہچانی کیفیت ہے۔ جی، یہ سست اور فکری ہوتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپنے دل کی تیز دھڑکن کو منطق اور دلیل سے قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ دماغ کے غلط حصے سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ آگ بجھانے کے لیے پانی کی بجائے ہوا پھونک رہے ہوں۔ آپ کا ارادہ ٹھیک ہے لیکن طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میرا دل تیزی سے دھڑک رہا ہو اور میں خود کو کہوں کہ سکون کرو، کوئی خطرہ نہیں، تو یہ اس لیے کام نہیں کرتا کیونکہ میں اپنے دماغ کے اس حصے سے بات کر رہی ہوں جو منطق سمجھتا ہے۔ بالکل،
जबकि अलार्म तो कहीं और से बज रहा है। बिल्कुल दुरुस्त, आप कॉर्टेक्स से बात कर रहे हैं जबकि अलार्म अमिगडाला बजा रहा है। अच्छा, तो आइए पहले इस अमिगडाला को समझते हैं। इसे दिमाग का खौफ का मरकज या चौकीदार कह लें। चौकीदार? जी, ये बहुत कदीम हिस्सा है। इसका एक ही काम है, आपको जिंदा रखना। ये सोचता नहीं, सिर्फ रद्द अमल देता है। अच्छा, ये रफ्तार पर काम करता है, मंतिक पर नहीं। जैसे ही इसे हल्का सा भी खतरा महसूस होता है, ये सेकंड के 1000वें हिस्से में पूरे जिस्म को लड़ो या भागो मोड में डाल देता है। और इसी की वजह से वो तमाम जिस्मानी अलामात जाहिर होती हैं, पसीना आना, जिस्म का ठंडा पड़ जाना, पेट में गड़बड़ महसूस होना, ये सब? जी हाँ, ये सब इस बात की निशानी है कि अमिगडाला ने कंट्रोल संभाल लिया है। और दिलचस्प बात यह है कि अमिगडाला सीखता कैसे है। ये जबान या अल्फाज से नहीं सीखता, ये तजर्बात और एहसासात के ताल्लुक से सीखता है। तजुर्बात से? जी, अगर किसी जगह, शख्स या सूरत हाल के साथ कोई बुरा खौफनाक तजर्बा जुड़ जाए तो अमिगडाला उस कनेक्शन को याद रखता है। जैसे किताब में लिफ्ट की मिसाल दी गई है। लिफ्ट की मिसाल तो क्लासिक है। फर्ज करें किसी को एक बार लिफ्ट में घुटन महसूस हुई और शदीद घबराहट हुई। ठीक है। अब अमिगडाला ने सीख लिया, लिफ्ट बराबर है खतरे के। लिफ्ट बराबर खतरा। जी, अगली बार वो शख्स सिर्फ लिफ्ट का दरवाजा देखकर ही घबरा जाएगा। उसका कॉर्टेक्स यानी सोचने वाला दिमाग उसे कहेगा कि भाई लिफ्ट महफूज है, रोज लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अमिगडाला ने सुनेगा। वो इस मंतिक को नहीं सुनता। उसने तो तजर्बे से सीखा है और उसके लिए वो तजर्बा ही हकीकत है। मेरे एक जानने वाले को सिर्फ लिफ्ट के बंद दरवाजे की डिंग वाली आवाज से पैनिक अटैक शुरू हो जाता था, चाहे वो लिफ्ट से 100 फुट दूर खड़ा हो। इतना शदीद? जी, उसके अमिगडाला ने इस आवाज को खतरे से इतना पक्का जोड़ लिया था कि मंतिक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। तो फिर इस अमिगडाला को पुरसुकून कैसे किया जाए? अगर दलील काम नहीं करती तो फिर क्या करता है? अमिगडाला को खामोश करने के लिए उसे नए महफूज तजर्बात देने पड़ते हैं। नए तजर्बात? उसे अमल चाहिए, अल्फाज नहीं। किताब में इसके लिए चंद तरीके बताए गए हैं। सबसे पहला और फौरी तरीका है गहरी और धीमी सांस लेना। सांस की मशकें? जी, जब आप अपनी सांस को पुरसुकून करते हैं तो ये जिस्म के जरिए अमिगडाला को पैगाम भेजता है कि खतरा टल गया है, तुम आराम कर सकते हो। अच्छा। दूसरा तरीका है जिस्मानी सुकून की मशकें, जैसे मसल्स को रिलैक्स करना। और सबसे मौसर तरीका जिसे बतदरीज सामना यानी ग्रेजुअल एक्सपोजर कहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सामना करना? जी, आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे कदमों में महफूज माहौल में उस चीज का सामना करना जिससे डर लगता है। इस अमल से अमिगडाला धीरे धीरे ये नया सबक सीखता है कि ओ, ये सूरत हाल तो अब खतरनाक नहीं रही। वो पुराने खौफ वाले कनेक्शन को कमजोर और नए पुरसुकून कनेक्शन को मजबूत करता है। अच्छा, तो अमिगडाला का मतलब है जिस्मानी रद्द अमल, वो अचानक उठने वाला तूफान। लेकिन उस तूफान से पहले जो हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है, वो जो जहन में अगर ऐसा हो गया तो कि मुसलसल फिक्र चलती रहती है, उसका क्या करें? सही। ये हमें दिमाग के दूसरे हिस्से यानी कॉर्टेक्स की तरफ ले जाता है। बिल्कुल, कॉर्टेक्स दिमाग का CEO है। ये सोचता है, मंसूबा बनाता है, तजिया करता है, जुबान समझता है और मुस्तकबिल के बारे में पेशीनगोइयां करता है। ये तो एक अच्छी सलाहियत है। ये एक शानदार सलाहियत है। लेकिन जब यही CEO हद से ज्यादा काम करने लगे और हर वक्त मुस्तकबिल के बदतरीन मंजरे नामे ही सोचता रहे, तो ये फिक्री बेचैनी पैदा करता है। ये वो बेचैनी है जो रातों को जगाए रखती है। जी, ये ख्यालात का एक जाल है जिसमें इंसान फंसा हुआ महसूस करता है। और इसके लिए सांस की मशकें शायद इतनी कारआमद ना हो, क्योंकि मसला जिस्म में नहीं, ख्यालात में है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कॉर्टेक्स की बेचैनी के लिए हमें दिमाग के उसी हिस्से की जुबान में बात करनी पड़ती है, यानी सोच और मंतक की जुबान में। जी, सोच और मंतक की। किताब इसके लिए बहुत अमली तरीके बताती है। पहला कदम, अपने मनफी ख्यालात को लिखें। लिखना? जी, जब कोई ख्याल सिर्फ जहन में घूमता है तो वो एक बड़े अफरीद की तरह लगता है, लेकिन जब आप उसे कागज पर लिखते हैं, मुझे डर है कि मैं नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा, तो वो अचानक एक जुमला बन जाता है। एक ऐसा जुमला जिसे आप देख सकती हैं, परख सकती हैं। बिल्कुल,
इसका कद छोटा हो जाता है। ये तो ऐसा है जैसे किसी भूत को रोशनी में ले आना। बेहतरीन तशबीह। और रोशनी में लाने के बाद दूसरा कदम है उससे सवाल करना। सवाल करना? क्या ये ख्याल एक हकीकत है या सिर्फ मेरा एक अंदेशा? इसका सबूत क्या है? क्या इसके अलावा कोई और मुमकिन नतीजा भी हो सकता है? ये सवालात कोर्टेक्स को मनफी सोच के खुदकार रास्ते से हटाकर तज्जियाती सोच के रास्ते पर डाल देते हैं। इसके अलावा एक बहुत ताकतवर जुमला जो आप खुद को सिखा सकते हैं वो ये है, ये सिर्फ एक सोच है, हकीकत नहीं। ये सिर्फ एक सोच है। ये जुमला सोच और आपके दरमियान एक फासला पैदा करता है। आप अपनी सोच बनने के बजाय उसके मुशाहिदा करने वाले बन जाते हैं। इसमें माइंडफुलनेस का भी बहुत जिक्र आता है, यानी हाल में रहने की मश्क। जी, क्योंकि कॉर्टेक्स से पैदा होने वाली बेचैनी तकरीबन हमेशा मुस्तकबिल के बारे में होती है। सही। माइंडफुलनेस कॉर्टेक्स को मुस्तकबिल की परेशानियों से खींचकर बार बार हाल के लम्हे में वापस लाती है। ये तरीके कॉर्टेक्स को आहिस्ता आहिस्ता सिखाते हैं कि हर वक्त खतरे के अलार्म बजाने की जरूरत नहीं है। ये एक जहनी पट्टों की तरह है, जितना आप इसे पुरसुकून रहने की तरबियत देंगे उतना ही ये मजबूत होगा। तो अगर मैं खुलासा करूं, अगर दिल धड़क रहा है और हाथ कांप रहे हैं तो ये अमिगडाला है और मुझे जिस्म पर काम करना है, जैसे सांस लेना। जी। और अगर जहन में मनफी ख्यालात का तूफान है तो ये कॉर्टेक्स है और मुझे अपने ख्यालात को लिखकर उनसे सवाल करना है। बिल्कुल। ये पहचान ही आधा इलाज लग रहा है। ये आधे से भी ज्यादा है। जब आपको ये मालूम हो जाए कि आप किस चीज से निमट रहे हैं तो आप सही औजार इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहीं पर किताब का सबसे उम्मीद भरा पैगाम सामने आता है, और वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी का तस्वुर। ये ख्याल कि हमारा दिमाग पत्थर पर लकीर नहीं है, ये बदल सकता है। ये बात सुनने में बहुत ताकतवर लगती है। ये सिर्फ ताकतवर नहीं, ये एक हयातियाती हकीकत है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का सादा मतलब ये है कि आप जो कुछ भी बार बार सोचते हैं, महसूस करते हैं या करते हैं, उससे आपके दिमाग में आसाबी रास्ते बनते और मजबूत होते हैं। अच्छा। बेचैनी इस बात का सबूत नहीं कि आपका दिमाग खराब है, ये इस बात का सबूत है कि आपके दिमाग ने गैर इरादी तौर पर खौफ और फिक्र के रास्तों को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है और वो रास्ते अब सुपर हाईवे बन चुके हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आप मश्क के जरिए नए पुरसुकून रास्ते भी बना सकते हैं। जंगल में एक नया रास्ता बनाने की तरह शुरू में मुश्किल होती है, लेकिन जितना उस पर चले वो उतना ही साफ और आसान होता जाता है। बिल्कुल यही। और इस नए रास्ते को बनाने के लिए किताब 2 अहम शराइत बताती है। पहली है तसलसल। एक दिन गहरी सांस लेने या एक बार अपने ख्यालात को चैलेंज करने से कुछ नहीं होगा। दिमाग तकरार से सीखता है। जब आप उन पुरसुकून करने वाले तरीकों को रोजाना की आदत बनाते हैं, तभी दिमाग पुराने खौफ वाले हाईवे को छोड़कर इस नए पुरसुकून रास्ते को अपनाना शुरू करता है। और दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी है, खुद पर नरमी या खुद से हमदर्दी, सेल्फ कंपैशन। जी, जब बेचैनी का हमला होता है तो हमारा पहला रद्द अमल अक्सर खुद पर गुस्सा करना होता है। फिर शुरू हो गया, मैं इतना कमजोर क्यों? हाँ, ऐसा होता है। ये ख्यालात दिमाग के लिए एक और खतरे का सिग्नल है। आप अपने एमिगडाला को बता रहे हैं कि सूरत हाल वाकई बहुत खराब है। इसके बरक्स, जब आप खुद से कहते हैं कोई बात नहीं, ये बेचैनी है, ये एक एहसास है, ये गुजर जाएगा, मैं महफूज हूँ, तो आप दिमाग को हिफाजत का पैगाम देती हैं। बिल्कुल। खुद से हमदर्दी तब्दीली के लिए सबसे जरखेज जमीन फराहम करती है। तो इसका मतलब है कि बेचैनी से लड़ना दरअसल उसे मजीद ताकत देता है। लड़ने की कोशिश ही एमिगडाला को ये बताती है कि लड़ने के लिए कोई हकीकी खतरा मौजूद है। आपने बिल्कुल नब्ज पर हाथ रखा है। जब आप बेचैनी को एक दुश्मन के बजाय एक पैगाम रसां के तौर पर देखते हैं। एक पैगाम रसां? जी, एक ऐसा पैगाम रसां जो शायद घबराया हुआ है और गलत वक्त पर पैगाम ला रहा है, लेकिन इसका इरादा आपकी हिफाजत करना है, तो आपका पूरा रवैया बदल जाता है। आप लड़ाई के मोड से निकलकर समझने के मोड में आ जाते हैं। और ये सफर सुस्त है, बहुत सुस्त। ये कोई 2 मिनट में ठीक होने वाली चीज नहीं है, लेकिन हर बार जब आप बेचैनी के बावजूद एक गहरी सांस लेते हैं, हर बार जब आप अपने मनफी ख्याल पर नरमी से सवाल उठाते हैं, आप अपने दिमाग में एक नया पुरसुकून बीज बो रहे होते हैं। और वक्त के साथ यही छोटे बीज एक पूरा जंगल बन जाते हैं।
تو آج کی اس گہری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ بے چینی ہمارے دماغ کا ایک حفاظتی نظام ہے جو تھوڑا زیادہ حساس ہو گیا ہے. جی. اس کے دو الگ مراکز ہیں، ایک فوری جسمانی رد عمل والا امیگڈالا اور دوسرا سوچ اور فکر والا کارٹیکس. صحیح. دونوں کو سنبھالنے کے طریقے مختلف ہیں. امیگڈالا کو پرسکون تجربات چاہیے اور کارٹیکس کو منطقی رہنمائی. اور سب سے بڑی امید کی بات یہ ہے کہ نیورو پلاسٹیسٹی کی وجہ سے ہم اپنے دماغ کو نئے پرسکون راستوں پر چلنے کی تربیت دے سکتے ہیں. اور اس کتاب کا آخری اور سب سے اہم پیغام یہی ہے کہ بے چینی ایک مستقل حالت نہیں ہے، یہ ایک سیکھا ہوا رد عمل ہے. سیکھا ہوا رد عمل. اور جو چیز سیکھی جا سکتی ہے اسے بھلا کر کچھ نیا بھی سیکھا جا سکتا ہے. جس دماغ نے خوف سیکھا ہے وہی دماغ سکون بھی سیکھ سکتا ہے. واہ. بس شرط یہ ہے کہ اسے وقت، درست طریقے اور سب سے بڑھ کر اپنے آپ سے نرمی اور ہمدردی دی جائے. تو آخر سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں. جی. یہ جاننے کے بعد کہ ہمارے خیالات اور جسمانی تجربات بے چینی پیدا کرنے میں اتنے گہرے طور پر جڑے ہوئے ہیں، اس ری وائرنگ کے سفر کو شروع کرنے کے لیے کوئی اپنے امیگڈالا کے لیے پہلا چھوٹا محفوظ تجربہ کیا بنا سکتا ہے؟ شاید صرف 3 گہری سانسیں لینا. اور اپنے کارٹیکس کے لیے وہ پہلا خیال کون سا ہو سکتا ہے جس پر وہ آج نرمی سے